Good morning, students. So today is Saturday and we were doing the revision of chapter Water Dear Water. I hope you all remember the revision. Yesterday we did the chapter Water Dear Water. My love to all little ones. My love to all class 3 students. So today we are continuing the chapter Water Dear Water. Just see the screen, see this image. We have done this exercise yesterday, exercise A. I am doing a quick recap of this exercise and then we will do exercise C. Alright, so we did the definition of ocean and glacier. We did sea के बारे में हमने पढ़ा, pond, lake, river. So you must know about these water bodies. For example, a huge water body, exercise A number 1, a huge water body made up of salt water. Salt water जहाँ लिखा है, that is ocean. And see the question number 5. A large water body which is a part of an ocean. Part of an ocean and surrounded by land is sea. Answer is SEAC. Yeah, we did this yesterday. We did about the water body called river, a natural stream of water that flows to meet another water body. अगर आपके पास कोई भी एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, किसी में भी ये क्वेश्चन आता है कि नेम द वाटर बॉडी विच इज़ अ नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड फ्लोज टू मीट अनदर वाटर बॉडी. फ्लोज टू मीट मतलब बहती है मिलने के लिए किसी और वाटर बॉडी से. किसी और वाटर बॉडी से किससे? ओशन या सी से. सो उस वाटर बॉडी को हम बोलेंगे रिवर. आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ रिवर गंगा विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. राइट. सो वी डिड ओशन, रिवर, सी. सेम वी डिड पॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 6. A natural or artificial. Artificial is an important word, children. Artificial is an important word. Pond is an artificial standing body of water. Artificial, standing, these two words. एक तो artificial है, man made है. Natural ponds भी होते हैं, but most important pond हम किसे कहते हैं? स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर, जो एक जगह खड़ा है, जो बह नहीं रहा है. ओके, सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रिवर, सी, ओशन एंड पॉन्ड. नाउ लेक, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड. सिंपल. अगर सिंपल लाइन लिखी है, अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर, बहुत बड़ा एक पानी का हिस्सा जो ज़मीन से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय लैंड इज़ कॉल्ड लेक. सो वी डिड दिस yesterday and today I will do with you exercise C. Look at this picture. I have done this exercise for you here again. Match these Indian lakes to their states. कि किन इंडिया की किन स्टेट्स में ये लेक बहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जम्मू कश्मीर इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया. नाउ यू विल रिपीट आफ्टर मी. You all will repeat after me. Dal Lake in Jammu Kashmir. Dal Lake कहाँ पाई जाती है? आपको अगर याद होगा, if you all remember that in my old PPTs, जो मैंने Water Dear Water की PPT बनाई थी, उसमें I have shown you a beautiful picture of Dal Lake in Jammu Kashmir. So repeat after me. Dal Lake, Jammu Kashmir. Again, Dal Lake, Jammu Kashmir. नंबर 1 को आपने देखा नंबर सी से मैच किया गया है. सो से राइट इट ऑन अ पेपर
DAL, डल, DAL, डल, डल लेक। हो सकता है आपको इन मैच दीज इंडियन लेक्स में आपको स्टेट्स के नाम दिए जाएं और एक तरफ आपको लेक्स के नाम, और फिर आपसे कहा जाए इनको मैच कीजिए, जैसे इस एक्सरसाइज में एग्जैक्टली है। ओके, सो यू मस्ट नो द स्पेलिंग्स चिल्ड्रन। DAL, डल लेक, मैच विद अल्फ़ाबेट C, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। So repeat after me. Say it again. Dal Lake, Jammu Kashmir. Now lake number 2, Loktak Lake. Loktak, LOKTAK. Loktak Lake, Manipur. Loktak Lake, Manipur. ठीक है? Say it after me. Loktak Lake, लोकटक लेक, मणिपुर, मणिपुर। Alphabet A. You all can see it very nicely here that I have matched both of them nicely, right? So it is very clear in front of you. So please say Loktak Lake, Manipur. Write the spelling of the lake on the paper. I request all my sweet children, please write it on a paper. LOK, और आप साथ साथ में इसको बोलेंगे भी, LOKTAK, लोकटक लेक, मणिपुर, लोकटक लेक। जितनी बार मैं बोल रही हूँ आप अगर उतनी बार बोलेंगे आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा बच्चों, आपको ज़रूर याद रहेगा। डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर। से इट विद मी, डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर, लोकटक लेक, मणिपुर। नंबर 3, वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट नेम। आपने थोड़ी साउथ इंडियन लैंग्वेज अगर कभी कहीं पे थोड़ा तो कुछ सुना होगा किसी से कि थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। सो इन दिस एक्सरसाइज इफ़ आई रीड अबाउट लेक्स, डल लेक, लोकटक लेक, पुष्कर लेक, भीमताल लेक, चिल्का लेक, वेम्बनाड इज़ अ वेरी डिफरेंट नेम। हाँ, सो वेम्बनाड लेक इज़ इन केरला, साउथ इंडिया, हिंदुस्तान के साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, हिंदी में अगर कहा जाए दक्षिण भारत के केरला राज्य में यह लेक पाई जाती है। वेम्बनाड लेक, अ वेरी डिफरेंट नेम। इन सभी 6 नेम्स में ये नेम बहुत अलग है। सो प्लीज़ मैच दिस लेक विद द स्टेट केरला, केरला, वेम्बनाड। See the spelling and write it on a paper twice. आप 2 बार इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। VEMBANAD, लेक। VE, आप लिखते लिखते बोलेंगे भी बच्चों, VEMBANAD, वेम्बनाड लेक, केरला। मेरे साथ बोलेंगे अब। डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर, लोकटक लेक, मणिपुर, वेम्बनाड लेक, केरला। ओके, चिलिका लेक, चिलिका लेक, चिलिका लेक, ओडिशा, ओडिशा, चिलिका लेक, ओडिशा। CHILIKA. You have to learn this. You have no other option children. थोड़ा सा आप 2 बार बोलेंगे तो ज़रूर याद होगा. चिलिका लेक, ओडिशा.
आप देखिए हमारी इंडिया में कितने सारी स्टेट्स हैं, उनमें कितनी सुंदर लेक्स हैं. आई थिंक बीइंग एन इंडियन we must aware of all these lakes and about all these states. We are blessed. हम बहुत बहुत blessed हैं कि हम इंडियंस हैं और यहाँ पर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं. राइट. सो आपकी बुक के ही बहुत आगे चैप्टर्स हैं जिसमें हम इंडिया के और स्टेट्स और बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे. अभी हम सिर्फ लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि इसको याद करने से क्या होगा. जब आप थोड़ा थोड़ा बड़े होंगे और अपनी इस जगह से बाहर निकलेंगे, डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करेंगे, यू विल लव इट. डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट फूड. राइट. सो यू मस्ट अवेयर, आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए. सो चिल्ड्रन, चिलिका लेक ओडिशा. से आफ्टर मी, चिलिका लेक ओडिशा. चिलिका लेक ओडिशा. वेम्बनाड लेक. से वेम्बनाड लेक केरला. चिलिका लेक ओडिशा. चिलिका लेक ओडिशा. CHI आपने 2 बार लिखा, अपनी शीट पर सबने 2 बार लिखा चिलिका लेक. CHILIKA. चिलिका लेक ओडिशा. लोकटक लेक मणिपुर. जो मैं बोल रही हूँ प्लीज़ रिपीट आफ्टर मी और विद मी. आइदर यू रिपीट आफ्टर मी और विद मी. मेरे बाद बोलिए या मेरे साथ बोलिए, बट प्लीज़ आप बोलिए बच्चों, बिकॉज़ आप बोलेंगे आपका लर्न होगा, आपको रिविज़न होगा, इसका आपको बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा. ऑल राइट. सो रिपीट विद मी और आफ्टर मी. चिलिका लेक ओडिशा. लोकटक लेक, यस, मणिपुर. लोकटक लेक मणिपुर. डल लेक जम्मू एंड कश्मीर. वेम्बनाड लेक केरला. वेम्बनाड लेक केरला. नाउ 5th one, पुष्कर लेक. पुष्कर. एनिमल्स, अमेजिंग एनिमल्स का एक चैप्टर था क्लास 2 का. उसमें मैंने बच्चों को बताया एनिमल्स के बारे में और उनको बताया कि कैमल रेस होती है पुष्कर में. पुष्कर एक जगह है राजस्थान में. इंडिया का एक स्टेट है राजस्थान. आप लोग सब जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, ये सब राजस्थान में है. आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव विजिटेड एटलीस्ट वंस. वहीं पर ये जगह है पुष्कर. सो पुष्कर लेक कहाँ पर है? राजस्थान. पुष्कर. पुष्कर लेक राजस्थान. PUSHKAR. PUSHKAR. Write twice on your paper. PUSHKAR. पुष्कर लेक राजस्थान. से पुष्कर लेक राजस्थान. लोकटक लेक मणिपुर. लोकटक लेक मणिपुर. वेम्बनाड लेक केरला. वेम्बनाड लेक केरला. पुष्कर लेक राजस्थान. चिलिका लेक ओडिशा. चिलिका लेक ओडिशा. लास्ट भीमताल लेक. भीमताल एक जगह है नैनीताल के पास और ये है उत्तराखंड स्टेट. हमारा जो इंडिया का एक स्टेट है उत्तराखंड. उत्तराखंड एक स्टेट है, वहीं पर ये जगह है भीमताल. अगर आप थोड़ा सा सर्च करके देखेंगे अबाउट भीमताल, इट्स अ स्मॉल हिल स्टेशन. बहुत सुंदर हिल स्टेशन है भीमताल. सो भीमताल लेक
उत्तराखंड, right? Bhimtal Lake, Uttarakhand. Please write the spelling of Bhimtal. BHIMTAL. MTAL. BHIMTAL. Right? Bhimtal. Bhimtal Lake, Uttarakhand. Bhimtal Lake, Uttarakhand. Okay? So let's repeat. Dal Lake, Jammu and Kashmir. Dal Lake, Jammu and Kashmir. Loktak Lake, Manipur. Repeat after me. Loktak Lake, Manipur. Vembanad Lake, Kerala. Vembanad Lake, Kerala. Chilika Lake, Odisha. Chilika Lake, Odisha. Pushkar Lake, Rajasthan. Pushkar Lake, Rajasthan. And last, Bhimtal Lake, Uttarakhand. Uttarakhand is a state in northern India. In northern India. Okay? Bhimtal Lake, Uttarakhand. So we have done this exercise also. I tried my best to give you the revision. Please learn the names if possible again. आपको याद रहेगा. And I think I'll tell you about your Viva. I will write the message tomorrow about your Viva. Parents, I will let you know about the Viva tomorrow for sure. And the syllabus also. पर अभी जो हम revision कर रहे हैं, this revision for sure will come in Viva. What we are doing right now, water dear water, will come in Viva for sure. For sure this chapter will come in Viva because we are doing the revision. So I will ask the questions also. Alright. So I hope you all are writing it. You all are writing the spellings. I will not ask the spellings, but I will ask the names. Okay. So you must know the names. Like I can ask Jammu Kashmir, name the lake which is in Kerala. So you must say Vembanad Lake. I can ask name the lake which is in Rajasthan. So you should answer, ma'am, it is Pushkar Lake in Rajasthan. तो जैसे मैंने आपको रिविजन कराया है, डू इट लाइक दिस. लोकटक लेक, मणिपुर. डल लेक, जम्मू कश्मीर. ओके, ऑल राइट. नाउ द एक्सरसाइज D. These are some water sports. You all must be very much aware of these water sports. So still we are doing it. I have again done the answers here. You can see. And I can revise it again with you with the good detail. Scuba diving. हम इसको बोलते हैं स्कूबा डाइविंग. डाइविंग होती है जब हम कहीं बहुत ऊपर से स्विमिंग पूल में या सी में, ओशन में, लेक में कहीं ऊपर से जंप करते हैं. डाइविंग. डाइव. DIVING. ओके. सो सी और ओशन के अंदर ही, बेसिकली ओशन के अंदर स्कूबा डाइविंग होती है. बिकॉज स्कूबा डाइविंग में हम डीप ओशन में जाते हैं, डीप इनसाइड द सी, एंड वी मीट विद द न्यू वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. पानी में रहने वाले जानवरों की दुनिया से हम अपने आप को परिचित कराते हैं, अपने आप को मिलवाते हैं. सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू सी द aquatic life, about the water animal, if you want to see the underwater life, if you really want to experience that, then scuba diving is a correct way. You can see, यहाँ एक आदमी है अंदर, उनको पूरा स्विम सूट पहनाया जाता है और पानी में इतना अंदर जाके वो फिशेस के, प्लांट्स के, वाटर प्लांट्स, वाटर एनिमल्स के बीच में से
अपने आप को देखते हैं. सो अगर आपको कोई भी इमेज ऐसी दिखे वाटर के अंदर डीप इनसाइड अ स्विमर, देन द स्पोर्ट इज कॉल्ड स्कूबा डाइविंग. ओके, सी द इमेज and repeat after me. Scuba diving. Scuba diving. Parasailing. Very easy. Parasailing happens in the sky. In the sky. Okay. So this is parasailing. इसको भी हम सी के ऊपर ही करते हैं बिकॉज विंड, जहाँ पर हवा विंड बहुत अच्छी चलती है, पैरासेलिंग वहीं हो सकती है. सी के ऊपर विंड का प्रेशर बहुत अच्छा होता है, तो पैरासेलिंग सी के ऊपर ही हो सकती है. इसीलिए पैरासेलिंग को वाटर स्पोर्ट कहा गया है. ऑलराइट, सो यू कैन सी दिस ब्यूटिफुल इमेज. these two people are enjoying parasailing. Say parasailing. See the image, point out the finger, keep the finger on the image, keep the finger on the image and say parasailing. Keep the finger on the image and say parasailing. Parasailing. Okay, parasailing. P-A-R-A, parasailing. S-A-I-L-I-N-G. Parasailing. Kayaking. Kayaking. K-A-Y-A-K-I-N-G. Kayaking. It's a water sport, पर ये बहुत आराम से होता है बच्चों. इसमें बनाना शेप की बोट होती है और सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं. Only 2 people can sit and enjoy the ride. आराम से स्लोली वाटर के ऊपर अपने आप को वो महसूस करते हैं. आप देख रहे हैं बोट के ऊपर बैठे हैं, इसमें 2 लोग. Only 2 people can sit. Only 2. And the boat shape is like a banana. Is like a banana. So we call this sport kayaking. Write it on a paper. K-A-Y-A-K-I-N-G. Kayaking. Okay. Now the next one, river rafting. Rafting is something very different. Rafting happens in the rough river. रफ़ रिवर मीन्स जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है और बहुत जंप करता है पानी ऊपर नीचे, जिसमें बहुत सारे पानी के इतने अच्छे बहुत तेज़ बहाव का पानी होता है. उसमें आपकी बोट जब जाती है तो बोट प्रॉपर जंप करती है. और इस राफ्टिंग में आप देख रहे हैं शिप में बहुत सारे 7, 8, 9 पीपल आराम से एक साथ बैठ सकते हैं. ओके, सो यू कैन ईज़िली मेक आउट द डिफरेंस आफ्टर सीइंग द वाटर ऑल्सो. आप इसमें वाटर देख रहे हैं कितना ऊपर नीचे है. आप इसमें वाटर देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें पानी ऊपर नीचे और कितना तेज़ है. या सो दिस इज़ ऑफन डन ऑन रफ वाटर. इसको हम कहते हैं रफ वाटर. एंड दिस इज़ स्टिल वाटर. बहुत आराम से स्लोली वाटर इज़ मूविंग. वाटर इज़ नॉट एब्सोल्युटली स्टिल हेयर, बट बहुत शांत है. सो kayaking happens in this water and river rafting happens in rough water. It happens on rough water. So this is the difference between river rafting and kayaking. रिवर राफ्टिंग में आप बोट में बहुत सारे लोग बैठे देखेंगे और वाटर बहुत रफ़ होता है. आप देख रहे हैं पानी कितना ऊपर नीचे, एकदम वाइट वाटर है. या एंड kayaking में एकदम क्लीन ब्लू वाटर है. सिंपल, नॉट मूविंग मच, not rough water, and not too many people are sitting on this boat, only 2 people. So this is the difference between kayaking and river rafting. All right.
All right, so this is it. This is it. We have done the chapter. We have done the chapter Water Dear Water. When I mentioned and where I taught you exercise A, B, C, D, we have completed. So I have done with the revision. So my little ones, learn well and do well. Give your best. Make your teacher and your parents proud. All right. So happy learning, and I will see you soon. For sure, students, parents, if you are there, I will for surely update about your Viva dates and syllabus. सिलेबस में वाटर डियर वाटर ज़रूर आएगा, वाइवा में वाटर डियर वाटर ज़रूर आएगा. खाली 2 चैप्टर आएंगे, ओनली 2 चैप्टर्स. सो मे बी वाटर डियर वाटर एंड फन विथ स्पोर्ट्स. ओके, एंड फन विथ स्पोर्ट्स चैप्टर 3. सो in case Viva happens in coming week, then I won't be able to take your revision because हमारी revision class तो Friday को ही होगी, right? So आपने ये revision fun with sports का तो खुद ही करना होगा. In case हमारा ये Viva before Friday होता है, in case हमारा Viva before Friday होता है, parents please hear this nicely. इन केस हमारा वाइवा 4 सितंबर से पहले होता है क्लास 3 का, तो आपको फन विथ स्पोर्ट्स का चैप्टर खुद ही कराना होगा. आई वोंट बी एबल टू डू इट बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, बट आई हैव डन दिस चैप्टर वाटर डियर वाटर थरली विथ स्टूडेंट्स. I will surely update about Viva dates and syllabus on portal tomorrow. So my lovely children, God bless you. I love you all very much and will see you soon. Take care. Bye bye.